قرآن مجید کا سورہ نمبر 37 سورہ صافات۔ بنام خدائے رحمان الرحیم، قسم ہے پوری طرح صف باندھنے والوں کی، پھر بطور کامل چھڑکی دینے والوں کی، پھر ذکر کی تلاوت کرنے والوں کی۔ یقیناً تمہارا معبود ایک ہی ہے، جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار اور مشرقوں کا پروردگار ہے۔ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا اور ہر سرکش شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ بھی، کہ وہ عالم بالا کی طرف کان نہ لگا سکے، اور ہر طرف سے ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں، دھتکارے جاتے ہیں، اور ان پر دائمی عذاب ہے۔ مگر ان میں سے جو کسی بات کو اچک لے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ تو ان سے پوچھ لیجئے کہ کیا ان کا پیدا کرنا مشکل ہے، یا وہ جنہیں ہم نے ان کے علاوہ خلق کیا ہے؟ ہم نے انہیں لیزدار گارے سے پیدا کیا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعجب کر رہے ہیں اور یہ لوگ تمسخر کرتے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت نہیں مانتے، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ کیا جب ہم مر چکیں گے اور خاک اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ کہہ دیجئے ہاں، اور تم ذلیل کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ وہ تو بس ایک چھڑکی ہوگی، پھر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری تباہی، یہ تو یوم جزا ہے۔ یہ فیصلے کا وہ دن ہے جس کی تم تکذیب کرتے تھے۔ گھیر لاؤ ظلم کا ارتکاب کرنے والوں کو اور ان کے ہم جنسوں کو، اور انہیں جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، پھر انہیں جہنم کے راستے کی طرف ہانکو، انہیں روکو، ان سے پوچھا جائے گا تمہیں ہوا کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ بلکہ آج تو وہ گردنیں جھکائے کھڑے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے باہم سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں تم ہمارے پاس طاقت سے آتے تھے۔ وہ کہیں گے بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ورنہ ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے۔ بس ہمارے بارے میں ہمارے رب کا فیصلہ حتمی ہو گیا، اب ہم عذاب چکھیں گے۔ بس ہم نے تمہیں گمراہ کیا جبکہ ہم خود بھی گمراہ تھے، تو اس دن وہ سب کے سب عذاب میں شریک ہوں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ یقیناً ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا تھا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک دیوانے شاعر کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ نہیں، بلکہ وہ حق لے کر آئے ہیں اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی ہے۔ بتحقیق تم دردناک عذاب چکھنے والے ہو، اور تمہیں صرف اس کی جزا ملے گی جو تم کرتے تھے۔ سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے، ان کے لیے ایک معین رزق ہے، ہر قسم کے میوے، اور وہ احترام کے ساتھ ہوں گے نعمتوں والی جنت میں۔ وہ تختوں پر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، بہتی شراب کے جام ان میں پھرائے جائیں گے جو چمکتی ہوگی، پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، جس میں نہ سر درد ہوگا اور نہ ہی اس سے ان کی عقل زائل ہوگی، اور ان کے پاس نگاہ نیچے رکھنے والی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، گویا کہ وہ محفوظ انڈے ہیں۔ پھر وہ آمنے سامنے بیٹھ کر آپس میں باتیں کریں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہتا تھا کیا تم قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ بھلا جب ہم مر چکیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں جزا ملے گی؟ ارشاد ہوگا کیا تم دیکھنا چاہتے ہو؟ پھر اس نے جھانکا تو اسے وسط جہنم میں دیکھے گا، کہے گا قسم بخدا قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کر دے، اور اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی تو میں بھی عذاب میں حاضر کیے جانے والوں میں ہوتا۔ کیا اب ہمیں نہیں مرنا؟ ہماری پہلی موت کے بعد ہمیں کوئی اور عذاب نہ ہوگا؟ یقیناً یہ عظیم کامیابی ہے
अमल करने वालों को ऐसी ही कामयाबी के लिए अमल करना चाहिए। क्या ये मेहमानी अच्छी है या ज़क्कूम का दरख्त? हमने उसे जालिमों के लिए एक आजमाइश बना दिया है। ये ऐसा दरख्त है जो जहन्नुम की तह से निकलता है, उसके खोशे शयातीन के सरों जैसे हैं। फिर वो उसमें से खाएंगे और उससे पेट भरेंगे। फिर उनके लिए उस पर खौलता हुआ पानी मिला दिया जाएगा। फिर उनका ठिकाना बाहर सूरत जहन्नुम होगा। बिलाशुबा उन्होंने अपने बाप दादा को गुमराह पाया, फिर वो उनके नक्शे कदम पर दौड़ पड़े और बतहकीक उनसे पहले अगलों की अक्सरियत गुमराह हो चुकी है और हमने उनमें तंबीह करने वाले रसूल भेजे थे। फिर देखो कि तंबीह शुदगान का क्या अंजाम हुआ, सिवाय अल्लाह के मुखलिस बंदों के। और नूह ने हमें पुकारा तो देखा कि हम कैसे बेहतरीन जवाब देने वाले हैं, और हमने उन्हें और उनके घर वालों को अजीम मुसीबत से बचाया, और उनकी नस्ल को हमने बाकी रहने वालों में रखा, और हमने आने वालों में उनके लिए जिक्र जमील बाकी रखा। तमाम आलमीन में नूह पर सलाम हो। हम नेकी करने वालों को ऐसे ही जजा देते हैं। बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। फिर हमने दूसरों को गर्क कर दिया, और इब्राहिम यकीनन नूह के पैरोकारों में से थे। जब वो अपने रब की बारगाह में कल्बे सलीम लेकर आए, जब उन्होंने अपने बाप, चचा और कौम से कहा, तुम किसकी पूजा करते हो? क्या अल्लाह को छोड़कर गढ़े हुए माबूदों को चाहते हो? परवरदिगार आलम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? फिर उन्होंने सितारों पर एक नजर डाली और कहा, मैं तो बीमार हूं। चुनाचे वो लोग उन्हें पीछे छोड़ गए। फिर वो उनके माबूदों में जा घुसे और कहने लगे, तुम खाते क्यों नहीं हो? तुम्हें क्या हुआ है कि तुम बोलते नहीं हो? फिर उन्हें पूरी ताकत से मारने लगे तो लोग दौड़ते हुए उनके पास आए। इब्राहिम ने कहा, क्या तुम उसे पूछते हो जिसे तुम खुद तराशते हो? हालांकि खुद तुम्हें और जो कुछ तुम बनाते हो सबको अल्लाह ने पैदा किया है। उन्होंने कहा, उसके लिए एक इमारत तैयार करो, फिर उसे आग के ढेर में फेंक दो। बस उन्होंने उसके खिलाफ एक चाल चलने का इरादा किया, लेकिन हमने उन्हें ज़ेर कर दिया। और इब्राहिम ने कहा, मैं अपने रब की तरफ जा रहा हूं, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। ए मेरे परवरदिगार, मुझे सौलिहीन में से औलाद अता कर। चुनाचे हमने उन्हें एक बुर्दबार बेटे की बशारत दी। फिर जब वो उनके साथ काम काज की उम्र को पहुंचा तो कहा, ए बेटा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, बस देख लो तुम्हारी क्या राय है। उसने कहा, ए अब्बाजान, आपको जो हुक्म मिला है उसे अंजाम दें। अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। बस जब दोनों ने हुक्म खुदा को तस्लीम किया और उसे माथे के बल लिटा दिया तो हमने निदा दी, ए इब्राहिम, तूने ख्वाब सच कर दिखाया। बेशक हम नेकोकारों को ऐसे ही जजा देते हैं। यकीनन ये एक नुमाया इम्तिहान था और हमने एक अजीम कुर्बानी से उसका फिदिया दिया, और हमने आने वालों में उनके लिए जिक्र जमील बाकी रखा। इब्राहिम पर सलाम हो। हम नेकोकारों को ऐसे ही जजा देते हैं। यकीनन वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। और हमने इब्राहिम को इसहाक की बशारत दी कि वो सालेहीन में से नबी होंगे, और हमने उन पर और इसहाक पर बरक़ात नाजिल की। और उन दोनों की औलाद में नेकी करने वाला भी है और अपने नफ्स पर सरी जुल्म करने वाला भी है। और बतहकीक मूसा और हारून पर हमने एहसान किया, और उन दोनों की कौम को अजीम मुसीबत से हमने नजात दी। और हमने उनकी मदद की तो वही गालिब आने वाले हो गए। और हमने उन दोनों को रोशन किताब दी, और उन दोनों को सीधा रास्ता हमने दिखाया। और हमने आने वालों में उन दोनों के लिए जिक्र जमील बाकी रखा। मूसा और हारून पर सलाम हो। हम नेकी करने वालों को ऐसे ही जजा देते हैं। ये दोनों हमारे मोमिन बंदों में से थे, और इलियास भी यकीनन पैगंबरों में से थे। जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, क्या तुम अपना बचाव नहीं करते? क्या तुम बाल को पुकारते हो और सबसे
बेहतर खल्क करने वाले को छोड़ देते हो। अल्लाह ही तुम्हारा और तुम्हारे पहले बाप दादा का परवरदिगार है। तो उन्होंने उनकी तकजीब की, बस वो हाजिर किए जाएंगे सवाए अल्लाह के मुखलिस बंदों के। और हमने आने वालों में उनके लिए जिक्र जमील बाकी रखा। आले यासीन पर सलाम हो। हम नेकी करने वालों को ऐसे ही जजा देते हैं। बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे, और लूत भी यकीनन पैगंबरों में से थे। जब हमने उन्हें और उनके सब घर वालों को नजात दी, सिवाय एक बुढ़िया के जो पीछे रह जाने वालों में से थी, फिर हमने सबको हलाक कर दिया। और तुम दिन को भी उन बस्तियों से गुजरते रहते हो और रात को भी, तो क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? और यूनुस भी यकीनन पैगंबरों में से थे। जब वो भरी हुई कश्ती की तरफ भागे, फिर कुरा डाला तो वो मात खाने वालों में से हुए। फिर मछली ने उन्हें निगल लिया और वो अपने आप को मलामत कर रहे थे। फिर अगर वो तस्बीह करने वालों में से ना होते तो कयामत तक उस मछली के पेट में रह जाते। और हमने बीमार हालत में उन्हें चटियल मैदान में फेंक दिया, और हमने उन पर कद्दू की बेल उगाई, और हमने उन्हें 1,00,000 या उससे जायद लोगों की तरफ भेजा। फिर वो ईमान ले आए तो हमने एक वक्त तक उन्हें मताए हयात से नवाजा। बस आप उनसे पूछें, क्या तुम्हारे रब के लिए तो बेटियां हों और उनके लिए बेटे हों? क्या हमने फरिश्तों को जब मुअन्नस बनाया तो वो देख रहे थे? आगाह रहो, ये लोग अपनी तरफ से गढ़ कर कहते हैं कि अल्लाह ने औलाद पैदा की, और ये लोग यकीनन झूठे हैं। क्या अल्लाह ने बेटों की जगह बेटियों को पसंद किया? तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसे फैसले करते हो? क्या तुम गौर नहीं करते? या तुम्हारे पास कोई वाज़ेह दलील है? बस अपनी किताब पेश करो अगर तुम सच्चे हो। और उन्होंने अल्लाह में और जिनों में रिश्ता बना रखा है, हालांकि जिन्नात को इल्म है कि वो अल्लाह के सामने हाजिर किए जाएंगे। अल्लाह उनके हर बयान से पाक है, सिवाय अल्लाह के मुखलिस बंदों के जो ऐसी बात मंसूब नहीं करते। बस यकीनन तुम और जिन्हें तुम पूछते हो सब मिलकर अल्लाह के खिलाफ किसी को बहका नहीं सकते, सिवाय उसके जो जहन्नुम में झुलसने वाला है। और मलाइका कहते हैं, हम में से हर एक के लिए मकाम मुकर्रर है, और हम ही सफ बस्ता रहते हैं, और हम ही तस्बीह करने वाले हैं। और ये लोग कहा तो करते थे, अगर हमारे पास अगलों से कोई नसीहत आ जाती तो हम अल्लाह के मुखलिस बंदे होते, लेकिन अब उसका इनकार किया, लिहाजा अनकरीब इन्हें मालूम हो जाएगा। और बतहकीक हमारे बंदगाने मुरसल से हमारा ये वादा हो चुका है। यकीनन वो मदद किए जाने वाले हैं, और यकीनन हमारा लश्कर ही गालिब आकर रहेगा। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुद्दत तक इनसे मुंह फेर ले और इन्हें देखते रहे कि अनकरीब ये खुद भी देख लेंगे। क्या ये हमारे अजाब में उजरत चाह रहे हैं? बस जब ये अजाब उनके दालान में उतरेगा तो तंबी शुदगान की सुबह बहुत बुरी होगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुद्दत तक इनसे मुंह फेर ले और देखते रहे, अनकरीब ये खुद भी देख लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब जो इज्जत का मालिक है, उन बातों से पाक है जो ये बयान करते हैं। और पैगंबरों पर सलाम हो, और सनाए कामिल उस अल्लाह के लिए है जो आलमीन का परवरदिगार है।